Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine. Today I am going to teach you future indefinite tense. Before this I taught present indefinite tense and I have changed the whole tense from active voice into passive voice. After that I have taught past indefinite tense and same there I have changed from active voice into passive voice. Today we are going to talk about future indefinite tense and we will change the all kinds of sentences, okay, whether that is simple, negative, interrogative, formal or informal. So let's move towards our lecture. In active voice, how can we change one sentence from active into passive? So first of all we have to know about the verb. Which one of the verb will be used here? In future indefinite tense, we use first form of the verb. We use first form of the verb. If you talk about the passive voice, in passive voice we use always third form of the verb. We use third form of the verb in all passive sentences. After that we have to write the helping verb. Helping verb of future indefinite tense is will and shall. Will and shall. Will is used with I, we, they, you, he, she, it, whether that is singular noun or plural noun. But shall can only be used with I and we. I and we can be used with will. If we talk about the helping verb of passive voice in future indefinite tense, so here will be used. Will be as a helping verb with all pronoun. With all pronouns. Then we have a simple formula, simple structure. How can we make simple formula of future indefinite tense? Subject plus helping verb plus first form of the verb plus object plus full stop. So according to formula we will make sentences. When you know the formula of anything, so you may make sentences of that or according to that formula. Suppose first we have to put subject, whether that is he, she, I, we, they are in name. Then helping verb will be used. Then we have to use first form of subject, she as helping verb, will first form of the verb write a story. वो एक कहानी लिखेगी. वो एक कहानी लिखेगी. This is simple sentence of future indefinite tense. So how can we change from active voice into passive voice? Active से passive voice में कैसे change कर सकते हैं? First of all we have to know the formula of that. Simple formula, how can we write? Subject changes into object, so we will put what? Object plus helping verb plus third form of the verb plus by plus subject plus full stop. Object here a story. यहाँ पे a story हमारे पास object है, वहाँ जाके subject बनेगी. A story will be, write का third form हमारे पास written है. Write, wrote and written. A story will be written
Then we use by to know the agent. There is subject which is she. She will change into her. A story will be written by her. एक स्टोरी उसके जरिए लिखा जाएगा. वो एक स्टोरी लिखेगी. स्टोरी एक कहानी उसके जरिए लिखा जाएगा. So this is called the simple formula or simple sentences of future indefinite tense. After that we will make negative sentences. How to make negative sentences? Negative formula. Nothing will happen. Just after helping verb we will put what? Not. Subject plus helping verb plus not plus first form verb plus object plus full stop. According to formula or structure we will make sentence. Subject he will not he will not cook food. He will not cook food. अब इसका पीसीयू कैसे बना सकते हैं हम? नेगेटिव फॉर्मूला. ऑब्जेक्ट प्लस will प्लस not फिर be, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है? be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. अब फूड हमारे पास सिंगुलर है. फूड will not फिर उसके बाद बी. कुक का थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? कुक्ड. कुक्ड बाय, यहां पे ही है सो ही विल चेंज इनटू हिम. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव तो बना लिए है. इंट्रोगेटिव है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. इंट्रोगेटिव फॉर्मूला. डायरेक्टली हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. तो सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? will I write a novel? Will I write a novel? क्या मैं एक नोवेल या अफसाना लिखूंगा? अब इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू मैं समझाऊंगा. यहां पे मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखना है. पहले मैंने सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को फार्मूले के तहत बनाऊंगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हम लोगों ने विल लगाना है, ठीक है. फिर उसके बाद यहां की जो
ऑब्जेक्ट है वो लगाना है, विल और नो विल, फिर बी लगाना है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, फिर बाय लगाना है, फिर आई विल चेंज इनटू मी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये रही हमारे पास इंट्रोगेटिव। उसके बाद हमारे पास फॉर्मल सेंटेंस है। फॉर्मल सेंटेंस में हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रही हमारे पास फॉर्मल फार्मूला। फॉर्मल फार्मूला का दूसरा जो नाम है, या फॉर्मल सेंटेंसेस का दूसरा नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम? Will I not eat food? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा? अब इसका फॉर्मल सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे लिख सकते हैं? पहले हम लोगों ने विल लगाना है, फिर फूड लगाना है, फिर हमारे पास जो बी है वो लगाना है, विल फूड, फिर नॉट, फिर बी, फिर ईट का जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है वो ईटन, फिर टू नो द एजेंट और प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी बाय लगाना है, फिर हमारे पास आई विल चेंज इट टू मी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब है हमारे पास लास्ट इनफॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं? एक चीज है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फर्क है? फॉर्मल में जो उर्दू इंग्लिश सेंटेंसेस है वो सेम है। उर्दू में हम लोग कह सकते हैं जैसे आप कहाँ जा रहे थे, इनफॉर्मल में हम कहते हैं तुम किधर जा रहे थे। एक अदब वाली है और एक बेअदबी या गैर रस्मी वाली है। यहां पे विल और नॉट को एक करके हम लोग विल और नॉट को एक करके, तो इसका क्या बनेगा? वांट और शिल और नॉट को एक करके शांट बनेगा। जब वांट या शांट इस्तेमाल किया तो फिर नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शांट वी प्ले फुटबॉल, शांट वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे? तो सेम हियर, यहां पे भी हम लोगों ने वही शांट और वांट लिखना है। अब फुटबॉल है तो हम लोगों ने वांट लिखना है। वांट फुटबॉल। यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में विल भी इस्तेमाल करते हैं। वांट फुटबॉल बी प्लेड बाय वी विल चेंज इनटू अस। तो ये रही आज की हमारी लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कंप्लीटली मैं पढ़ा चुका हूं, वेदर दैट इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फार्मूला, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। होप दैट आप लोगों को जो 3 टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।